हेलो बच्चों, वेलकम टू दिव्य कीर्ति क्लासेस। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वन शॉट रिवीजन करेंगे और उसके मेन जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है हमारे पास जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू ए गिवन सरफेस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स phi इक्वल टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू ba cos of theta, where b is the magnetic field strength, a area of the surface, and theta be the angle between normal to area and field direction. Special cases, if theta equal to 0 degree तो phi कितना हो जाएगा b into a, यानी कि फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, यानी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द गिवन सरफेस। सेकंड, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, phi इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ जीरो, यानी फ्लक्स आपका जीरो होगा, यानी मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passes through the given surface. In case of a coil of area A having n turns, तो फ्लक्स कितना होगा, phi equal to NBA cos of theta. Magnetic flux is a scalar quantity. Its value may be positive, negative, and zero. And dimension formula of magnetic flux is M1 L2 T minus 2 A minus 1. याद करने का तरीका, M1 L2 T minus 2 किसके बराबर है, एनर्जी, यानी एनर्जी अपॉन करंट। एनर्जी M1 L2 T minus 2, करंट का मतलब है A, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, एंड सीजीएस यूनिट क्या होती है, मैक्सवेल। अगर आपसे पूछा जाए कि एक वेबर में कितने मैक्सवेल होंगे तो आप बोलोगे एक वेबर में कितने मैक्सवेल होंगे, तो 10 की पावर 8 मैक्सवेल, या 1 मैक्सवेल इक्वल टू 10 की पावर -8 वेबर के बराबर होता है। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट इज द phenomenon of generating EMF by changing the number of magnetic lines of force, that is magnetic flux, associate with the circuit. The EMF so generated known as induced EMF. If circuit is closed, the current which flow it is the current will flow in it due to induced EMF is known as induced current के बराबर होता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि when a current carrying coil placed in uniform magnetic field, the magnetic flux linked with the coil change, and induced EMF or induced current produced in the coil. Next topic, Faraday's laws of electromagnetic induction. Faraday first law, it states that whenever the magnetic flux linked with the coil change and induced EMF produced in the coil. Faraday's second law, it states that the magnitude of induced EMF produced in the coil is directly proportional to rate of change of magnetic flux linked with the coil. Mathematically, induced EMF is given by E equal to minus d phi upon dt. Negative signs show that change in flux and induced EMF both are in opposite direction. नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, लेंज लॉ, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूस इट, यानी जिससे इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ है, पैदा होने के बाद उसी का ही अपोज करता है, उसे हम लेंज लॉ कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल स्टेट्स द राइट हैंड in such a way that the first finger, central finger, and thumb are mutually perpendicular to each other. The first finger gives the direction of magnetic field. The central finger gives the direction of induced EMF or induced current, and thumb gives the direction of motion, जिससे हम मदर मदर चाइल्ड के नाम से जानते हैं। मदर का मतलब है मोशन, मदर का मतलब एम का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, और सी का मतलब है चाइल्ड का मतलब है करंट, यानी इंड्यूस्ड करंट। Applications of Lenz law. When north pole of a bar magnet is moved towards the coil, the current induced in the coil will be in anti-clockwise direction as shown in the figure. यानी जब नॉर्थ पोल को किसी भी कॉइल के नजदीक लेके जाते हैं
तो वहां पर आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट पैदा होता है, और एंटी क्लॉकवाइज करंट पैदा होने से कॉइल के अंदर नॉर्थ पोल एक्वायर हो जाएगा। नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूव्ड away from the coil. The current induced in the coil will be in clockwise direction as shown in the figure. लेंथ लॉ का मेन काम क्या है? अपोज करना। अगर नॉर्थ पोल कॉइल के नजदीक जा रहा है तो जाने से रोकेगा, मींस नॉर्थ पोल एक्वायर हो जाएगा, और नॉर्थ पोल बनने का मतलब है डायरेक्शन कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हम नॉर्थ पोल को दूर लेके जाते हैं लाइक दिस, तो वो उसको दूर नहीं जाने देगा, तो वहां पर साउथ पोल एक्वायर हो जाएगा, और साउथ पोल से करंट की डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज हो जाएगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो, when a current carrying coil is moved towards the stationary coil, the direction of current induced in the stationary coil as shown in the figure, जैसे फिगर में दिखा रखा है। जब हम किसी एक कॉइल को दूसरी कॉइल के नजदीक लेके आएंगे तो उसके अंदर आपका इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाएगा। अगर हम when the current carrying coil is moved away from the stationary coil, the direction of current induced in the stationary coil as shown in the figure, आप करंट की डायरेक्शन देख रहे हो, दूसरी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा, डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट होगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एप्लीकेशन आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार 1 मार्क्स में पूछ ली जाती है। व्हेन करंट इन द स्ट्रेट कंडक्टर AB इज इंक्रीज्ड, द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमसे पूछा गया है कि इस कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन कैसे जा रही है, A टू B, और क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो हम यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, और थंब रूल लगाने से करंट आपका कहाँ जाएगा? हमारे पास A टू B इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड होगी आउटवर्ड, यानी आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, और डिक्रीज, और लेंजला क्या करेगा? उसका अपोज करेगा और उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। बढ़ाएगा तो कहां ले जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो डायरेक्शन कैसी होगी? आपकी क्लॉकवाइज होगी। एक, अगर आप उसको रखना भी चाहते हैं तो ध्यान रखें, करंट कहां जा रहा है कंडक्टर में? A टू B, और आपसे पूछा जाए कि कॉइल में करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, तो जो करंट की डायरेक्शन कंडक्टर में है कैसे है वो? क्लॉकवाइज। तो उसके अंदर भी कैसी हो जाएगी? आपकी क्लॉकवाइज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्लॉकवाइज। एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर करंट इन द कंडक्टर ए बी डिक्रीज, इंड्यूस करंट इन द लूप विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट। और कैसी होगी? आपकी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी आपके पास। नेक्स्ट टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। व्हेन ए करंट कैरिंग rod of length L moved with velocity v perpendicular to a uniform magnetic field B, the induced EMF across its ends is किसके बराबर होगा? BLV। B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, L का मतलब है लेंथ ऑफ रॉड, V velocity of the rod। This EMF is known as motional EMF होता है। If the rod makes an angle theta with the direction of field, the induced EMF is BLV sin of theta के बराबर होगा। Next, when a conducting rod of length L is rotating perpendicular to a uniform magnetic field B, then induced EMF between the ends of the rod is, ये आपका इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 के बराबर होगा। जो ओमेगा आपको दिखाई दे रहा है, इससे आप लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई इंटू न्यू। न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी। व्हेन ए conducting solid disk of radius r is rotating with a uniform angular velocity omega with its plane perpendicular to a uniform magnetic field B, the induced EMF half of B r square omega। r का मतलब रेडियस ऑफ द डिस्क, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। नेक्स्ट टॉपिक, इंडक्टर। एन इंडक्टर इज ए डिवाइस टू स्टोर एनर्जी इन ए मैग्नेटिक फील्ड। In usual practice, a coil or solenoid is treated as inductor. The symbol of inductor is, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडक्टर कहते हैं। यानी एक कॉइल को
हम क्या कहते हैं, कॉइल या सोलेनोइड को हम क्या कहते हैं, इंडक्टर कहते हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास सेल्फ इंडक्शन, द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच अपोजेस द ग्रोथ और डिके ऑफ द करंट इन द कॉइल। किसी भी कॉइल के अंदर करंट का बढ़ना या घटना उसका जो अपोज करता है उसे हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, when a current flowing through a coil and phi with the negative flux linked with the coil, then phi is directly proportional to I। किसी कॉइल में जितना करंट बढ़ेगा उतना फ्लक्स बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या लगा देंगे, कांस्टेंट L, phi इक्वल टू Li। L को बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। द सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। करंट की फॉर्म में लाएंगे तो माइनस एल डी आई अपॉन डी टी के बराबर होता है। ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज हेनरी एंड डायमेंशन फॉर्मूला M1 L2 T-2 A-2 के बराबर होगा। नेक्स्ट, ये आपका एक डेरिवेशन है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। लेट अस कंसीडर ए लॉन्ग एयर कोर्ड solenoid of length L, area cross section A, having n turns per unit length. When current I flowing through the solenoid, the magnetic field produced inside the coil is mu naught Ni। n का मतलब number of turns per unit length। Magnetic flux linked with n turn of solenoid phi equal to NBA cos of 0, cos 0 यानी 1, NBA आ गया। phi की वैल्यू हम क्या करेंगे, हम जानते हैं n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो n किसके बराबर आ जाएगा, n इंटू एल, स्मॉल n इंटू एल। तो हम n की जगह लिख देंगे हम n इंटू एल, b की जगह रख देंगे म्यू नॉट n इंटू आई, और a का मतलब a। म्यू नॉट और सेल्फ इंडक्टेंस, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, म्यू नॉट n स्क्वायर a इंटू एल। म्यू नॉट नेचर ऑफ द मटेरियल, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, L लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड के बराबर होगा। When a magnetic material of relative permeability mu r is filled inside the core of solenoid, the self inductance is increased to L equal to mu naught mu r n square L into A के बराबर होगा। Mutual induction, the phenomenon of induced EMF or induced current produced in the coil due to change in magnetic flux linked with the neighboring coil। जब किसी नेबरिंग कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा तो दूसरी कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा। इस फिनोमिना को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन में हमेशा दो कॉइल यूज की जाती है। एक कॉइल को प्राइमरी कॉइल कहते हैं और दूसरी कॉइल को हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। प्राइमरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक करंट फ्लो करेगा और करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने से दूसरी कॉइल के अंदर जो उसके नियर बाई है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं, phi s इक्वल टू m इंटू आई पी। m का मतलब कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स। The EMF induced in the stationary coil is given by ES equal to minus M DIP upon DT। M का मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ऐसा यूनिट ऑफ M is Henry and dimension formula same as the self inductance M1 L2 T-2 और A-2 के बराबर होगा। Coefficient of coupling, coefficient of coupling of two coils, each a measured of the coupling between the two coils is given by K equal to M upon L1 L2 का under root, where L1 and L2 are coefficient of self induction of two coils or M be the coefficient of mutual induction of two coils। The coefficient of coupling is maximum when two coils are bound on each other on a soft iron core। Coefficient of coupling is also large when the two coils are placed as
to have a common axis but less than when they are wound on each other. Coefficient of coupling is minimum when two coils are placed such that their axes are perpendicular to each other. अगर दोनों के एक्सिस सेम है, कॉमन है, तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मैक्सिमम होगा, और अगर एक्सिस परपेंडिकुलर है तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मिनिमम होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस की तरह हमारे पास एक डेरिवेशन म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी आता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स M equal to mu naught N1 N2 A upon L. Mu naught nature of material, N1 N2 number of turns in primary and secondary coil, A area of solenoid, and length of each solenoid. Combination of inductance, two inductors of self inductance L1 and L2 are kept so far apart that their mutual inductance is zero. These are connected in series, then the equivalent inductance each same as the resistance होती है। रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज में होते हैं तो R1 प्लस R2, तो आपके पास इंडक्टेंस क्या होगा, L इक्वल टू L1 प्लस L2। टू इंडक्टर्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 and L2 are connected in series and they have mutual inductance M, then the equivalent inductance of the combination L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M के बराबर होगा। इसके अंदर जो प्लस साइन है occurs if winding in the two coils are in the same sense, while minus sign occurs if winding are in opposite sense. Two inductors of self-inductance L1 L2 are connected in parallel, then equivalent inductance each 1 upon L equal to 1 upon L1 plus 1 upon L2, जिसे हम L equal to L1 L2 upon L1 plus L2 भी लिख सकते हैं। If we consider mutual inductance M of the two inductors, then L equal to L1 L2 minus M square upon L1 plus L2 plus minus 2M के बराबर होगा। Next topic, energy stored in an inductor. When a current I flowing through an inductor, the energy stored in it is given by U equal to half of L I square. The energy stored in an inductor in the form of magnetic energy. Next topic, AC generator. A generator induced electric energy from mechanical energy, यानी कि it is a device which convert mechanical energy into electrical energy, just the opposite of what a motor does. मोटर से हमेशा क्या रहेगा, opposite. An AC generator is based on the phenomenon of electromagnetic induction, which states that whenever the magnetic flux linked with the conductor change and induced EMF produced in the coil. ये induced EMF किसके बराबर होगा, E equal to N omega BA sin omega T. N का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, B मैग्नेटिक फील्ड, A एरिया, जिसे हम E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा T कहते हैं, और E नॉट का मतलब होता है N ओमेगा BA, जिसको हम पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF कहते हैं। अगर आपको इंड्यूस्ड करंट निकालना है तो I इक्वल टू कितना होता है, E अपॉन R। E की वैल्यू कितनी है आपकी, E नॉट साइन ओमेगा T, तो I हो जाएगा E नॉट बटे R साइन ओमेगा T, यानी I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा T। I नॉट का मतलब पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।